सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, the big idea that personally drives you, before we get to the BJP's political philosophy. मैंने अपने जीवन में ये तय किया है, और एक बार मैंने सुना था, एक संत थे, उनका भाषण सुना था कि यू कैन चेंज योर ओन सोशो इकोनॉमिक सिनेरियो। उससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली, और जब मैं मंत्री था तो 5 करोड़ के इक्विटी पर मैं 8,000 करोड़ के काम मैंने किए, और 4,000 करोड़ कैपिटल मार्केट से खड़े किए, बॉम्बे पुणे एक्सप्रेस हाईवे, फ्लाईओवर, सीलिंग प्रोजेक्ट। तो मुझे ऐसा लगा कि गॉड एंड गवर्नमेंट को छोड़कर हम अपनी गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी दूर कर सकते हैं। तो मैं उसी में काम करता हूँ। आई एम ए बेसिकली सोशल वर्कर। 20,000 लोगों उसके मेंबर है, 90 करोड़ की इक्विटी है, 500 करोड़ के एसेट्स है, 10,000 लोगों को रोजगार मिला है। मैं बायोफ्यूल, इथेनॉल, बायोडीजल, को जनरेशन में पावर, वाटर कंजर्वेशन और सोलर एनर्जी में काम करता हूँ। और मेरा बेसिक काम यह है कि मैं पावर पॉलिटिक्स के बजाय मैं समाजकारण, राष्ट्रीयकरण और विकासकरण पर विश्वास रखता हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू बॉदर व्हाट द पीपल फील अबाउट इट। But how can you say that you're the president of the main opposition party? How can you say I don't care about power politics? No, it's my conviction. Politics is an instrument of socio-economic reform. I am already select my way where I have to go. I am not going to bother whether it's a $1 million question whether you want to lead the people or lead by the people. So it's not about becoming prime minister. Lead the people, huh? It's not about becoming prime minister in 2014. Already I have given answer for your question in your NDTV program. But is that a yes or a no? No. First of all, it's not a big problem for my party to get power in the New Delhi. My big problem and big task is how we are going to change the socio-economic scenario of the country. And it's the mission. Unfortunately, in all political parties, people are career-oriented. Media is always think about only power politics. I feel that the social consciousness, social responsibility, and political consciousness and political responsibility is more important. And how to train the people, particularly the ministers, the public, to MLAs and MP in the direction which type of socio-economic transformation our country needs. That is the mission of my party, which I feel, and I want to insist on it. आप मानेंगे कि ये जो पिछला साल है, this year gone by, has seen a crisis for Indian politics like never before. At least urban middle class जो है, and कहा जा सकता है that this is a class that never really goes out and votes. It's always been traditionally cynical of politicians. But the success of the Anna Hazare movement represents a disillusionment with the ruling party, of course, but with politics in general. आप ये मानेंगे कि ये एक watershed moment आ गया है Indian politics के लिए, एक crisis of ideas है कि कोई नया idea नहीं आया. We haven't seen a new political idea in India for decades now. मुझे ऐसा लगता है कि लोगों में राजनीतिक नेताओं की विश्वसनीयता कम हुई है, और इसमें ये सच है। पर नई जनरेशन को लेकर लेट देयर बी ए पॉलिटिक्स फॉर डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस, और जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से ऊपर उठकर गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी हम दूर कर सकते हैं। वी आर ए रिच नेशन विथ ए पुअर पॉपुलेशन। रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड बैड गवर्नेंस इज़ अवर प्रॉब्लम। मेरा विश्वास है कि हम इसको बदल सकते हैं, और इसको बदलने में क्रेडिबल पॉलिटिकल लीडरशिप को तैयार करना और जिसकी सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कमिटमेंट है, ये संभव है, ये हो सकता है। और मुझे पता है कि राजनीतिक लोगों को और मीडिया को भी इसमें कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो पर ये बात बदल सकती है। और मैं तो राजनीति में हूँ, पर मैं अपनी बातों पर हूँ। मैं कभी दिल्ली आया नहीं, कभी किसी को मिला नहीं, मैंने अपना कटआउट लगाया नहीं और किसी के गले में कभी हार भी नहीं डाला है। तो मैं never garland to anybody. I never You've never touched anybody's feet like never. I don't touch. I touch the feet of Advani ji and Bajpayee ji because they are senior. But I never touch the feet of anybody because of my political career. I am very firm about my convictions. I am not going to bother what people feels about it. I have already decided my path, that what the way in which I have to go for this work. And it is a mission, and I am still, as a president of the Bharatiya Janata Party, we have 9 ruling states we have. Still my 50% energy and works I am devoting to my rural development program for ethanol, biodiesel, cogeneration power, agriculture, irrigation, water conservation and solar energy. And I am working there in my area, and my important conviction is the social consciousness is very important. In my area, the maximum farmer suicides are there.
The inspiration for the politics is how we increase the employment potential, how we can increase the per capita income and GDP, how can we increase the employment potential. So these are the mission. Which Now you said that the BJP today, and you believe that that's what it should stand for, stands for the politics of development. Yes. Would you say that a changing India has forced the BJP to also change its political positioning? After all, this was a party which had at one point 2 seats in the Indian parliament and rode on the back of the Ayodhya issue to increase and multiply its tally into the 80s. But today in 2011, political Hindutva has no place in modern India. Kya aap ye manenge? These are the debatable subject. What is the meaning of the religion and what is the meaning of the Hindutva, it is also debatable. But you've been forced to change. First of all, we are never changed. You've not changed at all? Not at all. Our basic spirit... That's not a good thing, Mr. Gadkari. No. First of all, I want to tell you, first off, you try to understand that whatever the inspiration and motivation which we people have from our basic ideology, it is the nationalism, good governance and development, and Antyodaya, the progress of the last man of society. From Dr. Shama Prasad Mukherjee to Dindayal Upadhyay to Atal Bihari Vajpayee and Advani ji. We are nationalist. We have a lot of socio-economic thinking in our party, lot of subjects which are in the national interest. They are already, our party is concerning all these subjects. Nothing is changed. The problem is that image versus reality. The problem is that there are a lot of people, those who have some impression about our party, the perception is something and ground reality is something. We are all in favor of modernization. We are not in favor of westernization. But would you concede that the dynamism of a political party and the dynamism of politics is that you have to change with the times? Definitely. In my party, I just wear this full pant and shirt. There was people who dhoti और कुर्ता पहनते थे, गंध लगाते थे. मैं तो कभी मंदिर में जाता नहीं, कोई पूजा करता नहीं. So I am a strong follower. लेकिन हिंदुत्व आप अपनी political philosophy हिंदुत्व आप जो समझती है और वो समझती है. हिंदुत्व अगर पढ़ना है तो सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या जो हिंदुत्व की वो जजमेंट से पूछिए. उन्होंने कहा इट इज अ वे ऑफ लाइफ. आप जो बड़े हमको बिना समझे बिना पहचाने हमारे नाम पर सब ठप्पे लगाकर आप मीडिया में कहते रहते हो, हम बता दे नहीं. द ग्राउंड रियलिटी इज समथिंग डिफरेंट, परसेप्शन इज डिफरेंट. और ये मुझे लगता है कि सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप कह रहे कि हाथी है तो नज़दीक जाके देखो, हाथी लगा तो हाथी को, अगर वो कुत्ता है तो कुत्ता को. आप हमको बिना देखे बिना पहचाने हमारे पर चिपकाते ही जाते हो. तो हम एक बात हो सकती है, हमारे में ये कमियां हैं कि हम आपके ऊपर नहीं कह रहा हूँ जो एलिगेशन लगते हैं उसका जितना इफेक्टिव जवाब देना चाहिए उसमें हम शायद कम पड़ते होंगे. But I want to ask you, you said the BJP is a nationalist party. Yes. I'm sure the Congress also calls itself a nationalist party. Nationalism today in India is understood in many different ways, Mr. Gadkari. What is the meaning today to the BJP of being a right-wing nationalist party? Some of the big communist leaders who explain about me as Nitin Gadkari is a leftist leader who is working of Gaon Garib Mazdoor Kisan. देखिए, first of all is rightist and leftist. These are all things for the big journalists they want to write somewhere. You're not a right-wing party. Not at all. You're not a right-wing party. I am not going to bother what people write about it. हर आदमी को रोटी मिलना चाहिए, हर युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, गांव के खेती को पानी मिलना चाहिए, देश का विकास होना चाहिए, सुखी समृद्ध संपन्न शक्तिशाली देश बनना चाहिए. दिस इज अ कॉमन फीलिंग. मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ और मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ. मुझे लगता है कि यही बात अलग अलग इसमें अलग अलग लोग अलग अलग भाषा में कहते हैं. लेटर अलग है, स्पिरिट एक ही है. और स्पिरिट यही है कि मैं एक संस्कृत में गीत मैंने पढ़ा था, मनसा सततम स्मरणीयम वचसा सततम वदनीयम लोकहितम मम करणीयम. सो सोशल वर्क और द पॉलिटिक्स इज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म. आई एम नॉट वर्किंग फॉर टू बिकम ए मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, MLA or MP. I want to work for the poor people. I want to work for the country. When I construct Mumbai-Pune Express Highway, one of the journalists, probably from BBC, she was asking me, why are you working so fast? Why are you making so flyovers, express highway and other thing? I just answer simply that this is my country. These are my people. I got an opportunity to do something for the people. I am doing it.
So this feeling of this is my country, that is nationalism. But can I ask you something? When Atal Bihari Vajpayee was Prime Minister, some of the most imaginative peace initiatives, whether it was with Pakistan, whether it was within Jammu and Kashmir, were taken by him. When the BJP was in power, it often seems quite a centrist party. When the BJP is out of power, it seems to go right of center again. When we remember Vajpayee's legacy, we all remember him as this thinking prime minister who was willing to gamble, think out of the box. Sometimes today, wouldn't you think that the BJP comes across as too rigid, too attached to a stated ideology as an opposition party? I'm contrasting it with Mr. Vajpayee's tenure as Prime Minister. ये बिल्कुल नहीं है। मैं अभी लंदन में था 2 महीना पहले, बीबीसी ने मुझे पाकिस्तान के लिए इंटरव्यू लिया था। देखिए, पाकिस्तान हमसे बुरी अवस्था में, उनका 4% ग्रोथ रेट है, भूखमरी, बेरोजगारी, महंगाई फेस कर रहे हैं। हमको पीस चाहिए, दोनों देश को विकास करने की आवश्यकता है, गरीबी भूखमरी से लड़ने की आवश्यकता है। वो हमारे देश में जो टेररिज्म है उसको एक्सपोर्ट करना बंद कर दें, अपने देश का विकास करें, हम भी अपना विकास करें। हम शांति चाहते हैं और जो वाजपेयी जी ने कहा उसी पर हम चलते हैं। एक बात है कि हम किसी माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है, किसी रिलीजन के खिलाफ नहीं, हम टेररिज्म के खिलाफ है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ है। और उसको लोग कहते हैं कि भाई हम इस कम्युनिटी के विरोध में, ऐसा नहीं है। और इसलिए वाजपेयी जी ने जिस बात पर चले थे उसी पर हम चलेंगे और वही हमारी बात है। और हम चाहते हैं शांति चाहिए, प्रोग्रेस के लिए पीस चाहिए और हम वही चाहते हैं। हम कोई ऐसी बात नहीं कहा हम पाकिस्तान में जाकर उनकी भूमि को तोड़कर अलग से यहाँ लाओ लड़ाई करना चाहते हैं, ऐसा कभी हमने नहीं कहा। आई डोंट नो बट मेनी पीपल अबाउट अस इतना लिखते हैं, इतना बोलते हैं, कभी कभी मैं हंसते रहता हूँ, सुनते रहता हूँ। ये क्या है कि लोकतंत्र है, आपको बोलने का अधिकार है, लिखने का अधिकार है। द ओनली थिंग इज़ दैट परसेप्शन गलत, कुछ अलग है, ग्राउंड रियलिटी अलग है, इमेज कुछ है, रियलिटी अलग है। मैं इतनी बात कहूँगा कि आप रिसर्च एंड रिसर्च करिए, आखिरी तक जाइए, आरएसएस का करिए, बीजेपी का करिए और आखिरी में आपके रिसर्च के बाद आपको पता चलेगा कि हम कम्युनल है, हम एंटी माइनॉरिटीज़ है, फिर निष्कर्ष निकालिए। ना कोई देखता है, ना कोई पहचानता है, ना कोई नज़दीक आता है। वो बुक लिखते रहते हैं, कार्यक्रम होते रहते हैं, आप लिखते रहते हो, ऐसी बात चलती है। Do you think this perceived ideological labels जो आप कहते हैं हम लोग लगाते हैं is potentially a political disadvantage for you? मैं आपको एक example देती हूँ. You were amongst the first to support Anna Hazare. Yes. You wrote a letter, you said you support his movement. Many other BJP leaders also said this. Today, Anna Hazare wants to distance himself from RSS support. So you are offering support, Anna Hazare saying RSS का support हमें नहीं चाहिए. देखिए, मैं उस दिन अगर लेटर नहीं देता तो रामदेव बाबा के साथ जो हुआ वही अन्ना हजारे के साथ वहाँ होने वाला था। एक्चुअली कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री जी के घर में हमारे नाम से बिल फाड़ रहे थे कि बीजेपी के लोग अन्ना को सपोर्ट नहीं कर रहे, उनके बिल को मान्य नहीं कर रहे। और बार बार ये कहा जा रहा था कि हमारे लोगों को क्या पार्लियामेंट, जब सुषमा जी, अरुण जी और अडवाणी से बात होती थी तो कांग्रेस के लीडर कहते थे कि रामलीला मैदान से अब लोकतंत्र चलेगा, पार्लियामेंट वहाँ से चलेगी। और जब ये पत्र मैंने दिया तब भी कांग्रेस के एक मंत्री ने जगह कहा कि अभी जो ड्राफ्ट है इसको बीजेपी का विरोध है। मैं औरंगाबाद में था, मेघा पाटकर जी का मुझे फ़ोन आया, मैंने वहाँ से सुषमा जी को फ़ोन किया कि आप जाओ टीवी के सामने ये कहो कि जो ड्राफ्ट है उसको हमारा समर्थन है, हमने दिया, ये झूठ बोल रहे हैं। मुझे एक बात बतानी, देखो हम किसी के सपोर्ट के मोहताज नहीं हैं। हम अन्ना हजारे के कोई आंदोलन का उपयोग नहीं कर, मैं तो लास्ट मैन हूँ जो बिना बुलाए कहीं नहीं जाता। So you're saying if और बीजेपी और आरएसएस को भी देखो, उन्होंने इतना ही कहा था। मैंने उस भाषण में सरसंघ चालक जी का भाषण सुना था जी। मैं वहाँ था, आपको पता ही है कि मैं कट्टर आरएसएस वाला हूँ, तो मैं वहाँ बैठा था और मैं कोई बात छुपाता नहीं। जिसको पटता है वो साथ आएगा, नहीं पटता है नहीं आएगा। मैं आपको बताता हूँ, सरसंघ चालक जी ने इतना ही कहा था कि इस देश में देश के हित के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी आंदोलन करेगा उस सब संगठन को हम समर्थन करेंगे, उसका साथ देंगे। इसका अर्थ कौन सा? आप कभी सरसंघ चालक जी के भाषण की सीडी सुन लो और आप एक वाक्य उसमें से ऑब्जेक्शन निकाल दो ना। उन्होंने श्रेय लेने की बात नहीं की, आपने चला दिया, अन्ना ने प्रतिक्रिया दे दी। तो आप कह रहे हैं यू डोंट वांट टू गो एनीवेयर अनइनवाइटेड एंड इफ अन्ना हजारे जी और रामदेव बाबा के आंदोलन को हमारा समर्थन है। हम देश हित में काम करते हैं, देश भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। कल बरखा दत्त भी आंदोलन करेगी और कल इससे भी ज़्यादा सीपीएम कम्युनिस्ट पार्टी भी आंदोलन करेगी देश के हित के लिए, और कोई भी करेगा, हमारा अपोनेंट भी करेगा। इफ एनीथिंग गुड इफ इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, बीजेपी विल सपोर्ट दैट एजिटेशन। कहेंगे आप करो, हम आपके साथ हैं, बिल्कुल करेंगे। And you're saying that if Anna Hazare had not got your support and the RSS support, then
The crackdown that took place on Baba Ramdev would have happened to him also. नहीं, मैं ये आपने कहा था ये। मुझे नहीं, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, आप देखो, मैं ग्राउंड रिलेटिव आपको बता रहा हूँ। उस दिन मेघा पाटकर और प्रशांत भूषण मेरे घर पर आए थे सुबह। ये स्ट्रेटेजी थी, मैं फिर से समझा रहा हूँ, मैं फिर कोई नई बात उसमें कंट्रोवर्सी मत करिए, सच्चाई बता रहा हूँ। वो कह रहे थे कि कांग्रेस की स्ट्रेटेजी ये थी कि अन्ना हजारे के आंदोलन को किस प्रकार से समाप्त करें। आपको वो जो मंत्री अपने सिब्बल और उनकी एक नीति थी कि कैसे हम डील करेंगे। यही लोग रामदेव बाबा को एक बार संत कह रहे थे, दूसरे बार ठग कहने लगे। तो इनकी तो कोई पॉलिसी नहीं है, पॉलिसी ऐसी रहती दमदार, ये हमारी पॉलिसी है। ये एक बोलते थे, एक करते थे। उन्होंने क्या किया कि जो पार्लियामेंट में हमारे नेता थे उनका मूड ऐसा रखा कि ये ऐसे होगा, ये रामलीला मैदान पर से पार्लियामेंट चलेगी, आप लोकतंत्र पर विश्वास रखते हो, इधर ये इनको बोलते थे। तो वो बेचारे चुप बैठते थे कि ऐसा कैसे होगा। और उधर अन्ना हजारे के टीम को जाकर प्रशांत भूषण जी को बताते थे कि हम क्या करें, हम तो तैयार हैं, बीजेपी तुमको अपोज कर रही है, ड्राफ्ट को तैयार नहीं कर रही है, ऐसा कह के उनको हमारे खिलाफ भड़का रहे थे। मैंने इस स्थिति में अपने माइंड विचार करके मैंने एक पत्र लिख कर दे दिया, किसी को बिना पूछे दिया, और मैंने पत्र अन्ना हजारे को दिया क्योंकि मैं चाहता हूँ देश भ्रष्टाचार मुक्त हो, और मैंने पत्र देने का निर्णय किया। But are you upset today at how he wants to distance himself? मैं कोई अपसेट नहीं हूँ। देखो एक बात आपको बताता हूँ, अन्ना हजारे ईमानदार व्यक्ति है, महाराष्ट्र में मैंने उनको देखा है, और उन्होंने समाज के लिए, देश के लिए अच्छा काम किया। वो आरएसएस का सपोर्ट करे, बीजेपी का करे ना करे, कल जाके कांग्रेस का करे और किसी का करे, पर जिस कॉज के लिए वो लड़ रहे वो अच्छी कॉज है, देश के हित में है, और जब तक अच्छी कॉज है, व्यक्ति कोई भी हो, हम उसका समर्थन करेंगे। आपने प्रशांत भूषण की बात की। We saw how he was assaulted for his comments on Jammu and Kashmir. Now, whatever be your opinion on what he said, do you think that India is at a dangerous point where an intolerance for ideas that we don't agree with or that make us uncomfortable, we are becoming increasingly impatient and we are becoming an increasingly violent society? हर रोज खबर आती है, so and so roughed up, so and so assaulted, किसी पे जूता फेंका, किसी पे, from Digvijay Singh to Arvind Kejriwal to Prashant Bhushan to, everybody is vulnerable. What do you think is happening to our society? What explains this intolerance for ideas that make us uncomfortable? देखिए, प्रशांत भूषण ने जो कहा उससे हम सहमत नहीं हैं, पर उनके साथ जो व्यवहार किया वो गलत है। हम लोकतांत्रिक देश है, इस देश में जो भी व्यक्ति है, कोई भी व्यू पॉइंट पर जो भी कहता है वो कहने का अधिकार है। इस प्रकार से किसी पर अटैक करना गलत है, ये नहीं होना चाहिए, और मैं इसका समर्थन कभी नहीं कर सकता। पर एक बात जरूर है कि लोग भी ऐसी बात करें कि जिससे कारण न होते लोगों को भड़काने का काम न करें। अब सभी लोग इतने समझदार नहीं है, बड़ा देश है, फिर भी जो घटना हुई वो गलत है, हम उसका कभी समर्थन नहीं करेंगे। Mr. Gadkari, talking just in terms of ideas, sometimes people joke, but it's actually true, that the BJP, if it was able to shed some of its history, would actually be no different from the Congress in economic philosophy, in national ideology. Because if you compare government to government, the NDA government and the UPA government, what do you see as the basic ideological difference if you do it government to government? नहीं, बहुत फर्क है। क्या है वो फर्क? देखिए, पहली बात ऐसी है कि रिगार्डिंग मेनी थिंग्स, इकोनॉमिक इश्यूज़ पर आपको पता होगा कि देश का पहला BOT रोड मैंने शुरू किया था जब हम मंत्री थे, तो हमारे पार्टी में बहुत चर्चा हुई थी कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रायोरिटी दी, नेशनल हाईवे तैयार किया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 60,000 करोड़ की बनाने का मुझे सौभाग्य मिला, गाँवों तक रोड गए। अभी इरिगेशन को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। दुर्भाग्य से वो जो सब्जेक्ट है इरिगेशन का वो स्टेट लिस्ट में है, उसको कॉन्करेंट लिस्ट में लाना चाहिए। और रिगार्डिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज़, हम ये मानते हैं कि सरकार सब जगह करना चाहती है, गलत बात है। गुड पॉलिसी एंड गुड एडमिनिस्ट्रेशन इज, सरकार का रोल कम से कम होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोगों के इनिशिएटिव को इनकरेज करना चाहिए। जैसे प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप जो महात्मा गांधी जी ने कहा, उसके आधार पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को इनकरेज करना चाहिए कि रिसोर्सेज कम है। बहुत से बातों पर इस सरकार की नीति जो है वो इकोनॉमिक अप्रोच में हमसे काफ़ी विरोध में है। But I'll again give you an example that it was the BJP in government that brought about a shift in the relationship between New Delhi and Washington. The closeness of the two countries strategically started then. लेकिन जब civilian nuclear deal आई, the BJP for a long time took an opposing position. So is the BJP in government
a party with one political philosophy, and is the BJP's opposition a party with a different political अब philosophy? एक न्यूक्लियर पावर की बात कर रहे हैं। अब न्यूक्लियर पावर पर मेगावाट 17 करोड़ रुपए कॉस्ट आती है। मैं अभी बिहार राज्य से ज़्यादा पावर मैं जनरेट करता हूँ हमारे ग्रुप में, हमारे किसान और हम मिलकर 125 मेगावाट बायोमास से। अब सोलर एनर्जी है, बायोमास है, अल्टरनेटिव फ्यूल है। 17 करोड़ पर मेगावाट न्यूक्लियर पावर लाना या 6 या 7 करोड़ तक अभी सोलर का कॉस्ट कम होते जा रहा, उसको लाना देश के लिए कौन सा इकोनॉमी के लिए अच्छा, ये तो सोचना होगा। न्यूक्लियर प्लांट के बारे में जो अभी वर्ल्ड में जो कुछ हो रहा है, क्यों अगर अमेरिका में अगर न्यूक्लियर पावर इतनी है तो अभी नए प्लांट न्यूक्लियर क्यों नहीं आते? उसके डिसएडवांटेज क्या है? ये डिबेटेबल इशू है। और इसलिए एक इशू पर हमने जब निर्णय किया था, अब यूरेनियम बेस करना या थोरियम बेस करना, दैट इज़ अ डिफरेंट क्वेश्चन। हमारे देश में क्या अवेलेबल है उस पर हमने एक स्टैंड लिया था। इसका मतलब हम कोई नई टेक्नोलॉजी को विरोध करें और यूएसए को विरोध करें, ऐसी बात नहीं थी। यूएसए के बारे में मुझे एम्बेसडर मिले थे, तब मैंने उनको कहा, मैं थोड़ा नाराज़ हुआ उनके ऊपर, तो मैंने उनको कहा कि तुम पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हो और वो पूरे उनको वेपन्स दो और हमारे ऊपर वो यहाँ टेररिस्ट घुसा रहे हैं। आप अगर विश्व में शांति चाहते हो तो ये मित्र क्या कर रहा है आपको दिखता नहीं क्या? आप स्टॉप क्यों नहीं करते उसको? तो उन्होंने कहा मैं अगर लाहौर जाता हूँ इस्लामाबाद तो वो लोग हमको गाली देते हैं, आप क्या है तो आप गाली देते हैं। तो मैंने बोला आप आत्म परीक्षण करिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमको नहीं लग रहा कि आप टेररिज्म से दिल से बात करें, क्योंकि आप पाकिस्तान के एक्टिविटीज़ को मदद करें, वो टेररिज्म स्पॉन्सर करें, आप उसको स्टॉप करो। आज देखो क्या हुआ, आज यूएसए के समझ में आ गया कि पाकिस्तान किस प्रकार से कर रहा है। देखिए, मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा कि ये इशू बेस बहुत सी बातें हैं, इसको एकदम राइट विंग लेफ्ट विंग और ऐसा करके स्टैम्प करना ये अप्रोप्रिएट नहीं है और जस्टिफाइड। बहुत से हमारे पाकिस्तानी दोस्त यहाँ ऑडियंस में भी हैं, पर्सनल लेवल पे आपको इनविटेशन दें, कम तो लो, जाएंगे? मैं दिल से पाकिस्तान की प्रगति और विकास चाहता हूँ। पाकिस्तान भूखमरी, बेरोजगारी, महंगाई से मुक्त हो। और मैं कभी कभी मजाक में सोचता हूँ, मैं आसाम में था कि बांग्लादेश में क्रूड ऑयल मिल गया, तो मैंने उनको कहा कि देखो अगर क्रूड ऑयल मिल गया तो बांग्लादेश की इकोनॉमी अच्छी होगी, फिर वहाँ बहुत पैसा आएगा और जो बांग्लादेशी हमारे घर में देश में आए उनको एम्प्लॉयमेंट उधर मिलेगा, वहाँ का ज़्यादा इनकम होगा तो वो फिर से वापस चले जाएंगे। तो हमारा दोस्त अगर अच्छा होगा तो हम भी अच्छे रहेंगे। तो मैं तो उनकी प्रगति और विकास की कभी भी जाऊँगा, 100% जाऊँगा। ओके, आपसे फर्स्ट वार्निंग बेल आ गई है, आपसे 2 सवाल पूछना चाहूँगी। द सिंबल ऑफ द यात्रा, एल.के. अडवाणी इज ऑन अ नेशनल यात्रा। मेनी पीपल वुड से दिस इज अ सिंबल दैट इट बिलोंग्स टू द पास्ट, ये मॉडर्न मेटाफर नहीं है। व्हाट इज द यात्रा मिस्टर गडकरी? देखिए, अब पब्लिक के साथ जाने के जो जो माध्यम उपलब्ध है उसमें ये है, पर अब नए सिस्टम से भी आपकी बात में दम है। जैसे हमारे इंटरनेट के माध्यम से हम अलग अलग प्रकार के ये है। यू आर नॉट ऑन ट्विटर और फेसबुक, आर यू ऑन ट्विटर? हाँ, मैं हूँ। आप हो हैं? अच्छा, क्योंकि सुषमा स्वराज को तो आपने बहुत डांट लगाई थी एक बार। पर मैंने प्रतिक्रिया दे, मैं मीडिया से सबसे डरता हूँ। डरते हैं? लग तो नहीं रहा। मैं इंटरव्यू देता नहीं और बने तक जाता नहीं, आपसे बहुत कंफर्टेबल हूँ। पर कोई कंट्रोवर्सी अभी तक हुई नहीं है, पर अब नए माध्यम बदल गए। अब मैं एक हमारे पार्टी कार्यालय में हम लोग एक इंटरनेट टीवी शुरू कर रहे हैं। इंटरनेट टीवी? हाँ, यस। और अभी हमने पूरे कार्यालय को बहुत अच्छे कंप्यूटराइज किया है, हमने ईमेल का नेटवर्क तैयार किया है। देखिए, 21वीं सदी क्या पॉलिटिक्स और देश की भी, इट्स अ पॉलिटिक्स फॉर डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस, एंड 21st सेंचुरी इज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT और BT की है। तो हम पूरे मॉडर्न टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं। मैंने अभी सब हमारे फुल टाइम वर्कर को iPod भेज दिया। मैंने 200 iPod खरीदी की है पार्टी की ओर से, और सबको का इस पे अभी देखते रहिए। अभी यूपी के इलेक्शन में मैंने iPod दिया है, इंटरनेट पर बात कर, iPad, हाँ यस, सॉरी iPad दिया। और इंटरनेट के माध्यम से हम लोग उसको ये कर रहे हैं कि हम लोग कम्युनिकेशन हमारे बीच में का कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये भी कर रहे हैं। One last question. So many questions are being raised about the nature of our democracy, how to strengthen it, what is a genuine parliamentary democracy. You have decided to contest an election. It will be your first Lok Sabha election. Do you believe that the person who leads the country, whoever is the Prime Minister, whether from the BJP, the Congress or any other party, must be a popularly elected leader? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता। हमारे डेमोक्रेसी में राज्यसभा और लोकसभा में जो भी सांसद बनता है वो बन सकता है। But what is preferable? Not preferable. Any person who is capable for the post, no problem is there. But would you like your party candidate to be a Lok Sabha candidate or a Rajya Sabha candidate? नहीं, ऐसा है, आपको एक सवाल का मैं जवाब दे चुका हूँ, बीच में भी इसमें बहुत चर्चाएं चली है। देखिए,
मुझे दो पत्रकारों ने कहा, मैं भी जनता में काम करता हूँ, मेरे यहाँ से भी 5-7 MP ऐसे कि जो मेरा भी फोटो लगा के चुन कर आए, पर मैं पार्टी में काम करता था, अनेक MLA भी चुन कर आए, तो उनने मुझे कहा कि ये मासेस से चुन कर नहीं आया। मैं थोड़ा सा मुझे लगा ये ऐसा कह रहे कि चलो चुनाव लड़ेंगे, तो मैं चुनाव लड़ने वाला हूँ, उसमें इतना कोई सीरियस नहीं है। I must ask you with the liberty from the floor before we end, Narendra Modi, I know you have all said that again this is a media campaign. Do you think Narendra Modi also needs to reach out, perhaps change his image, perhaps come across as more willing to engage, start a process of reconciliation, so that the shadow of 2002 that haunts the BJP in much the same way as 1984 haunts the Congress can lift? देखिए, पहली बात है, नरेंद्र मोदी भी कोई कम्युनल नहीं, जातिवादी नहीं, एंटी माइनॉरिटी के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको फिर से बताता हूँ, हम गुजरात से ज़्यादा दंगे महाराष्ट्र में हुए हैं, गुजरात से ज़्यादा लोग महाराष्ट्र में मरे हैं, गुजरात में 19 इनकाउंटर हुए, यूपी में 350 इनकाउंटर हुए हैं। आपने हर इनकाउंटर की इंक्वायरी शुरू की, कुछ लोगों ने ये तय कर दिया है कि हमारे ऊपर ठप्पा ही मार देना है उनको। मैं आपको बताता हूँ, विश्वास के साथ बताता हूँ, नरेंद्र मोदी रहे चाहे नितिन गडकरी रहे, हम जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स को डिस्क्रिमिनेट करने वाली कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं। आज गुजरात का एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 14% है, देश का एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 2.4% है। गुड गवर्नेंस का, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट का रोल मॉडल गुजरात बना है। गुजरात में करप्शन नहीं है, और जो दंगे हैं वो अनफॉर्चुनेट है। आपको ऐसा लगता है कोई दंगा होता है तो कोई चीफ मिनिस्टर कहता है कि इन रिलीजन वालों को मारो और इसको मारो, ऐसा कह सकता है कोई कंट्रोल कर सकता है ऐसा? दीज आर अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स। इसको रोकने की कोशिश हुई, ये अनेक राज्यों में हुए हैं, या दिल्ली में अनेक सिखों की हत्या हुई इंदिरा जी की हत्या के बाद। The Congress apologized for 1984, 25 years maybe too late। आप ये कहेंगे कि उसके लिए कांग्रेस की लीडरशिप ने प्लान करके मारा है सबको? कुछ गलत लोगों ने कुछ किया है, इट डजंट मीन दैट दैट वाज द एक्टिविटी व्हिच इज प्लान एंड प्रिपेयर्ड बाय द कांग्रेस पार्टी एंड देयर लीडरशिप एंड ऐसा नहीं है। मुझे लगता है नरेंद्र भाई के बारे में भी जो इंप्रेशन आपके मन में है वो घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है, पर अगर डिटेल में जाएंगे तो गुजरात का भी मुसलमान, सबसे पर कैपिटा इनकम गुजरात में मुसलमानों का ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा मुसलमानों के बस्तियों में विकास गुजरात में हुआ है, गुजरात में GDP उस एरिया में अच्छा है। और एक मुझे BMW के डीलर है, मुंबई में रहते, बांद्रा में, उन्होंने कहा, मुस्लिम है, उन्होंने कहा मैं पूरा मेरा बिजनेस गुजरात में करूँगा, सबसे सेफ हूँ, अच्छा हूँ। गुजरात के मुसलमानों में डर नहीं है। डर जो आप लोग लिखते हैं, बोलते हैं, वो आपका अधिकार है, मैं उसमें कुछ कहना नहीं चाहता। वो हमारी इमेज को, जैसे कि हम लोग नरेंद्र मोदी जैसे हाथ में स्टेनगन लेके घूम रहा, कहाँ दिखा मुसलमान, मारो इसको। अब जेठमला नहीं बताएंगे, वो उनके लिए काम करे, बहुत सी बातें कितनी सच्चाई और झूठ है। Well, Gujarat needs a full 1 hour or more or many hours to discuss, but it's good to hear Mr. Gadkari, the BJP, talking about the politics of development and governance. Thank you so much. Thank you.